Hello everyone, welcome to Beckons. Today I would be working on lecture number 5 of Common Confusions, and I would be working on for and since. Now, I've seen people, even with very good English, ending up not understanding the difference between for and since. Then they guess it, they sometimes are able to understand it, the next day they just commit the same mistakes. Now let's have a look at this. You have to all these minor mistakes. Now आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो छोटी छोटी mistakes हैं, इनका क्या इतना impact आएगा? इनका बहुत ज़्यादा impact आता है। यही छोटी mistakes 25 mistakes बन जाती हैं और आपके IELTS के या किसी भी एग्ज़ाम के अंदर 2.5 बैंड या 2 बैंड कट जाता है because you made that many mistakes. Now let's have a look at these two sentences. I want you guys to write down or tell me which one would be the most suitable one. It would be I have been working since 10 years. अब मैंने देखा है कुछ लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, वो कह रहे होते हैं I've been working in the company, I've been living over there since 5 years. यही चीज़ें impact करती हैं when someone is listening to you or when someone is reading your text. You have to understand the difference between these two. So I want you guys to first of all tell me I have been working since. Would it be since 10 years or would it be for the last 10 years? Please write down in the comment box. Would it be since 10 years or for the last 10 years? If you look at the second sentence, it has been written down, she has been living there since or for 2010. Now, let's start with a very basic thing, which is understanding which one is used when. And then I'll be giving you more examples. अब अगर आप इस पहले सेंटेंस को देखते हैं तो शायद आप यहाँ पे ये लिखें कि फॉर द लास्ट 10 years और इधर आप since 2010 लिख दें. But if you're just guessing, what is the point of doing all that thing? Let's understand what is actually the difference between for and since. अब ये जो for होता है, for, why do we use for? Why do we use for? That is the basic question. Why do we use for? अगर आप लिख रहे हैं I have been teaching for the last 50 minutes, तो मैंने यहाँ पे for क्यों लगाया? For हम तब लगाते हैं जब हमें दो इवेंट्स के बारे में पता हो. अब how would you actually calculate 50 minutes? 50 मिनट्स जो हैं वो आप वैसे तो कैलकुलेट नहीं कर सकते ना. आपको अभी के टाइम का भी पता होना चाहिए और जिस टाइम पे स्टार्ट हुआ था उसका भी पता होना चाहिए. फॉर इंस्टेंस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. इफ आई स्टार्टेड एट 2:10 एंड नाउ इट इज 3 PM, तो ये जो 50 मिनट्स हैं ये वैसे कैलकुलेट नहीं हुए. इस 50 मिनट्स को कैलकुलेट करने के लिए जब आपको कोई चीज़ जो आप बता रहे होते हैं वो किसी कैलकुलेशन से कैलकुलेट की गई हो, उसके लिए 2 इवेंट्स और 2 टाइम पीरियड्स की ज़रूरत होती है. उसके लिए आप हमेशा फॉर लगाते हैं. लेट मी जस्ट क्लैरिफाई इट फर्दर. अगर आप लिखते हैं आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 5 years, अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो वो 5 साल कैसे कैलकुलेट किया आपने? एक तो आपको अभी का टाइम का पता होना चाहिए, 2000, या मैं 10 साल का कह रहा हूँ, 2020 और 2010. तो जो फॉर वाला होता है वो बेसिकली एक कैलकुलेटेड फॉर इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ कैलकुलेटेड फिगर. एक कैलकुलेटेड फिगर होती है तो हम उसके साथ फॉर को यूज करते हैं. अब इसी के साथ मैं सिंस को भी लिख देता हूँ. आई हैव बीन टीचिंग since 2010. since जो होता है for के अंदर तो आपको 2 इवेंट्स का पता होना चाहिए, मतलब 2 सालों का पता होना चाहिए, 2 टाइम पीरियड्स का पता होना चाहिए. since के लिए it is only for one specific
point in time, and for you need to have two specific points in time. अगर आपको मैं एक बात कहता हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि आप पिछले आप क्या कर रहे हैं, आप कहेंगे कि मैं पिछले 2 महीने से किसी ऑफिस में काम कर रहा हूँ, तो वो जो 2 महीने आपने कैलकुलेट किए हैं उसके लिए आपको आज का टाइम का भी पता होना ज़रूरी था और आपको पहले वाले टाइम का भी पता होना, you were required to know about that time also. But for since आप सिर्फ एक ही टाइम पीरियड का बताते हैं, आप उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करते. Let me just give you some examples for since now. जैसे आप किसी को कहते हैं he has been working there since morning, since Friday, since August, since 2010, since his birthday. So what do you see over here? You see that there is only one specific point in time. एक ही टाइम, सिर्फ मॉर्निंग का कह रहे हैं, फॉर द मॉर्निंग नहीं कह रहे, सिर्फ एक मॉर्निंग का कह रहे हैं जिसके ऊपर आपको 2 टाइम पीरियड्स का होना ज़रूरी नहीं होता. जब आप सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम का कह रहे होते हैं तो फिर आप उसको हमेशा सिंस के साथ यूज़ करते हैं. नाउ लेट्स कंपेयर इट विद फॉर द लास्ट 10 minutes. अच्छा, अब आप कह रहे हैं I have been teaching this thing for the last 10 minutes. तो for the last 10 minutes का क्या मतलब है? मैंने 3 बजे स्टार्ट किया और मैं अब 3:10 है, it's 3:10 PM. So I'm saying for the last 10 minutes. अब मैंने 10 minutes कैसे कैलकुलेट किया है? उसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे 2 टाइमिंग्स की ज़रूरत थी. एक था 3 PM और दूसरा 3:10 था. जब 2 टाइमिंग्स की ज़रूरत करके हम उसकी कोई कैलकुलेशन करते हैं, like for 10 minutes you have calculated a number, you have to write down for the last. और अगर मैं ये नहीं लिखता, if I don't want to write, I have not calculated that number and I just want to say कि 3 बजे से, so I would not say for the last 3 PM, it would be since 3 PM, क्योंकि मैंने अब सिर्फ एक टाइम के बारे में बताया है, एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम के बारे में बताया है. अब इसमें थोड़ा क्लैरिफाई कर लें आप अपने आप को कि सिंस के अंदर आपको यू ओनली गेट वन स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, और जो फॉर होता है उसमें हम 2 स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम्स को उसमें मेंशन नहीं कर रहे होते, मगर वो टाइम कैलकुलेट किया जाता है अगर हमारे पास 2 स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम हो. लेट मी जस्ट डू इट वंस अगेन. अगर आप ये कहते हैं I have been going there for the last 4 months, तो ये 4 months जब आपने कैलकुलेट करने हैं, आप किसी तुक्के से तो नहीं करेंगे ना. आप क्या करेंगे? You will know the month right now and the month at that time. अगर आप ये कहते हैं, अब सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम को कंसिडर करके कहते हैं, so you would say I have been going there since Feb. Okay, I think you cannot see it properly. I have been going there since Feb. Okay, thank you.